transaction. Transaction is a set of operations which are logically related. कुछ डेटाबेस में आपने टेबल डिजाइन किए हैं. आफ्टर क्रिएशन ऑफ द टेबल अब हम कुछ उसके अंदर सर्टेन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, लॉजिकल ऑपरेशन से रिलेटेड we want to do certain operations, then there will be some set of operations called transaction will be produced. Another way we can say that a transaction can be defined as a group of tasks. बहुत सारा काम मिला के ट्रांजैक्शन किया जाता है. And a single task is the minimum processing unit which can be divided further. So students, the concept of transaction provides a mechanism for describing the logical units of database processing. And the transaction processing systems are the systems with large databases and hundreds of concurrent users एक साथ जहां पे database से at a time working चल रहा है. Examples of such systems related with the transactions are like reservations, जहां एक साथ बहुत सारे यूजर एट ए टाइम काम करते हैं स्टूडेंट्स. बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग सिस्टम्स, स्टॉक मार्केट्स, सुपरमार्केट चेकआउट and related to these any other similar activities where the transaction processing systems are working. So students, transaction is a set of changes that must be made together. जहां बहुत जगहों से एक साथ हम कोई बदलाव करना चाहते हैं, that time the transaction will be happen, and it is a program whose execution मेयर जो मेन इसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं may not change the content of a database. Transaction is executed as a single unit if the database was in consistent state before the transaction. See the important line here students, आप थोड़ा इस पे गौर करें. If the database was in the inconsistent state before the transaction, then after execution of the transaction also the database must be consistent. अगर before database consistent state था, transaction होने के बाद भी consistent state होना जरूरी है. For example, हम एक छोटा सा बात करते हैं. Suppose कीजिए a transfer of money from a bank account of one bank account से to another requires to change two changes to the database, both must succeed or fail together. मान लीजिए एक अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया तो दूसरे से डेबिट करके किया, तो दोनों में ट्रांजैक्शन या तो एट ए टाइम अपडेट होंगे, अदरवाइज दोनों के ही ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाना चाहिए. Am I right स्टूडेंट्स? आपने एटीएम मशीन से पैसा विड्रॉ किया है, दैट मीन्स ट्रांजैक्शन आपके बैंक से भी पैसा विड्रॉ हो जाना चाहिए, माइनस हो जाना चाहिए अकाउंट से, फिर डेबिट हो जाना चाहिए. एज वेल एज यू विल गेट द मनी एंड फ्रॉम द एटीएम मशीन द collection of money amount will also be reduced. This is the process of transaction. The operations in the transaction, see that the main operations of the transaction is read operation and write operation. Read operation क्या होता है? Read operation means read the data from the database and it stores it in the buffer, means in main memory. सब मतलब एक जगह से डेटा को रीड करेंगे और बफर की मेन मेमोरी के बफर में इस डेटा को रख देंगे. फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा रीड ए. इंस्ट्रक्शन विल रीड द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम द डेटाबेस. डेटाबेस में से ए को रीड किया एंड इट विल स्टोर इट इन द बफर मेन मेमोरी. राइट ऑपरेशन कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? राइट ऑपरेशन राइट्स द अपडेटेड डेटा दैट विल बी बैक टू द डेटाबेस फ्रॉम द बफर. रीड से आपने डेटा को रीड किए थे एंड थ्रू द राइट ऑपरेशंस यू विल
write the data to the buffer in main memory. For example, write A will write the updated value of A from the buffer memory. जो आपने A से रीड किए थे वो उसमें आप राइट कर देंगे. तो स्टूडेंट, दिस इज द ऑपरेशंस related to read and write. Now the transaction state. ट्रांजेक्शन होने के लिए द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ द स्टेट्स विल वर्क. कैसे इस ट्रांजेक्शन में स्टेट्स काम करेंगे. स्टूडेंट, आई हैव डिस्कस हियर विथ अ सिंपल डायग्राम. You see the diagram in this note. You can see there are certain states which are associated with the transaction states. One is called active, one is called partially committed, another one is called committed, another one is called failed, another one is called aborted. यानी कि 1 2 3 4 5 steps are related, 5 states are related. जब किसी भी डेटाबेस में ट्रांजैक्शन होता है तो वहां पे आपका कितनी स्टेप्स काम कर रहा है स्टूडेंट्स. देयर विल बी सर्टेन 5 स्टेप्स. नाउ आई एम डिस्कसिंग वन बाय वन. द फर्स्ट स्टेप इज एक्टिव स्टेट. स्टूडेंट, एक्टिव मतलब बिगिन अपने ट्रांजैक्शन शुरू कर रहे हैं दैट टाइम. एक्टिव स्टेट में 2 पॉइंट्स मैंने आपके सामने नोट डाउन किया. सी द पॉइंट्स हियर. द एक्टिव स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन. In this state, the transaction is being executed. जो आपने ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका स्टार्ट होने के बाद. फॉर एग्जाम्पल, इंसर्शन, डिलीशन और अपडेटिंग अ रिकॉर्ड. ऑलरेडी रिकॉर्ड आपने डेटाबेस टेबल में इंसर्ट किए हुए हैं. नाउ you are inserting again or deleting some record or you are updating certain record. That will be done here. But all these records are still not saved to the database. That will be inside the buffer. That is the active state. जिस स्टेट के अंदर आफ्टर बिगिनिंग ये वर्क करेगा और एग्जीक्यूट कर देगा. नाउ whenever the data has been passed from the active state, that will go to the partially committed state. Partially committed means a transaction executes its final operation, but the data is still not saved to the database. आपने उसको एक्टिव लिख तो करा दिया, एक्टिव हो चुके हैं. आफ्टर दैट हम इसको कमिट नहीं कर रहे हैं कि परमानेंट सेव करें, बट इट्स गोइंग टू सेव, गोइंग टू एग्जीक्यूट. जैसे सेकेंड पॉइंट में आपके सामने मैंने इलेबोरेट किया स्टूडेंट्स. इन द टोटल मार्क्स कैलकुलेशन एग्जाम्पल, सपोज कीजिए किसी भी विद्यार्थी का some examiner, some students has given certain examination and after that we are taking their calculation for the total marks. For that example, a final display of the total marks step is executed in this step. टोटल कर रहे हैं तो टोटल मार्क्स जो भी है वो यहां पे क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा. दैट इज द पार्शियल स्टेट. पार्शियली कमिटेड यानी कि आपने आंशिक रूप में कमिट कर दिया उसको. नाउ स्टूडेंट, कमिटेड आपके सामने डायग्राम है. नाउ कमिटेड, कमिटेड मींस दैट फाइनलाइज्ड. अ ट्रांजैक्शन इज सेड टू बी कमिटेड स्टेट if it executes all its operations successfully in this state. Means whenever you have done all the operations successfully excuse me, that will be committed, right? And all the effects are now permanently saved to the database system. जो अब तक हम बफर की बात कर रहे थे वो permanently आपका committed में क्या हो गया, सेव हो गया. Now students, failed state. Here you can see also the diagram. Partially committed से पहले active से दूसरी लाइन यहाँ पे यहाँ की तरफ बढ़ रही है, that is failed. ऐसा भी हो सकता है कि आपका partially committed हुआ ही नहीं, failed state में चला गया. That will be another state. कब होगा ये state happen आपका? Whenever if any of the checks made by the database recovery system, then the transaction state
is still not saved to the database. If any of the checks made by the database recovery system fails, अगर आपका कोई भी ऑपरेशन एक्टिव होते टाइम गलती हो गया, नहीं हो पाया, देन दैट टाइम द ट्रांजैक्शन आपका डेटाबेस में सेव होने नहीं जाएगा. दैट इज द इनसाइड द फेल स्टेट. और जैसे आपको अभी बता रहा हूं मैं, इन द एग्जाम्पल ऑफ total marks calculation, if the database is not able to fire a query to fetch the marks, right, then the transaction will fail to execute. अगर आपका ऐसा कंडीशन आता है कि आपका मार्क्स फेच करने में दिक्कत हो रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो आपका फेल स्टेज में चला जाएगा ऑटोमेटिकली. दैट विल बी फेल दैट टाइम. नाउ स्टूडेंट, अबॉर्टेड स्टेट. अबॉर्टेड सी देयर, अगर आपका फेल हो चुका है, अगर मार्क्स के कैलकुलेशन में कहीं जोड़ में मिस्टेक था, नाउ फेल हो गया, फेल होने के बाद वो ऑपरेशन में अबॉर्टेड होगा. इफ एनी ऑफ द चेक्स फेल्स and the transaction has reached a fail state, then the database recovery system will make sure that the database is in the previous consistent state. Right? If not, then it will reboot or roll back the transaction to bring the database into a consistent state. स्टूडेंट अबॉर्ट तो तब होगा जब आपका फेल स्टेट, जैसे मैंने अभी अभी आपको समझाया, इफ एनी ऑफ द चेक्स फेल एंड द ट्रांजैक्शन हैज रीच्ड अ फेल स्टेट, अब डेटाबेस रिकवरी सिस्टम आपको कह रहे हैं कि डेटाबेस जो है फेल स्टेट में है, आपका नहीं रिकवरी हो रहा है, तो मेक श्योर दैट द डेटाबेस इज इन द प्रीवियस कंसिस्टेंट स्टेट. आपको वो जरूरी है. अगर प्रीवियसली कंसिस्टेंट स्टेट में नहीं गया तो आपका अबॉर्ट नहीं हो सकता. और अगर स्टेट में नहीं जा रहा है प्रीवियस कंसिस्टेंट में, उस टाइम में आप जो है अबॉर्ट के थ्रू, अबॉर्ट स्टेट के जरिए आपका जो है प्रीवियसली कंसिस्टेंट स्टेट में बैक करके जा सकते हैं, जिससे डेटाबेस कंसिस्टेंट. हमें अल्टीमेटली, मैंने आपको शुरू में ही बताया, वी विल हैव टू डू बिफोर द ट्रांजैक्शन द डेटाबेस शुड बी इन द कंसिस्टेंट स्टेट, एंड आफ्टर द डेटाबेस विल बी देयर आल्सो, देयर सर्टेन विल बी इनसाइड द कंसिस्टेंट स्टेट. तो ये चीज हम तभी कर पाएंगे, एंड दैट ऑपरेशन विल बी डन इनसाइड द अबॉर्टेड स्टेट. इफ द transaction fails in the middle of the transaction, then before executing the transaction, all the executed transactions are rolled back to its consistent state. ये aborted state का वर्क है. स्टूडेंट, आफ्टर अबॉर्टिंग द ट्रांजैक्शन, जब ये अबॉर्टिंग हो जाएगा, द डेटाबेस रिकवरी मॉड्यूल विल सिलेक्ट वन ऑफ द टू ऑपरेशंस. दो ऑपरेशन का एक, इनमें से कोई एक ऑपरेशन करेगा अगर अबॉर्टिंग हो चुका है. फर्स्ट वन, इट विल रिस्टार्ट द ट्रांजैक्शन. आइदर कर सकता है दोबारा ट्रांजैक्शन को शुरू करे, या किल द कंप्लीट ट्रांजैक्शन. अबॉर्टेड स्टेट का सर्टेन पर्पस ये है कि दैट विल बी गो इनसाइड द कंसिस्टेंट स्टेट. जैसा भी, या तो प्रीवियसली पहुंचा दे या दोबारा सक्सेसफुली करके दोबारा आपको सर्टेन ऑपरेशन में पहुंचे. Now student, we are discussing the complete transaction procedure with an example. Let us see the example here. Let us assume a transaction T1 that transfer a money from account A to account B. आप समझ गए, एक अकाउंट है A, एक अकाउंट है B. We are transferring suppose some money and the transaction name is T1. Before transaction, let A equals to 1000 and B equals to 1000 also. दोनों के अकाउंट में 1000 अमाउंट है. A एक अकाउंट नंबर है, B एक डिफरेंट अकाउंट है. The transaction can be represented as follows. हमने इस तरीके से T1 को सक्सेस करे. बिगिन द ट्रांजेक्शन, रीड A. मैंने आपको बताया रीड A का मतलब A से
डेटा को रीड करके मेन मेमोरी की बफर में डाल देता है ले लेता है, सॉरी, रीड कर लेता है। नाउ ए विल बी ए माइनस 500, हमने नया वर्क किया है, ए में से 500 रिड्यूस किया एंड दैट इज राइट ए, मतलब ए में लिख दीजिए नया वैल्यू। ए का वैल्यू हम 1000 से 500 reduce, okay, that will be 500 amount, and read b, that is here also 1000. Now b equals to b plus 500, that is b 1000 से बढ़ के 1500 हो गया, यानी कि 1500, and we have used the here commit and end the transaction after begin its end. Now what will be the functionalities regarding active and other related states? Let us discuss here. When the transaction T1 starts, student enter begins transaction, एक्टिव में आपका ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा, एंड फ्रॉम बिगिन ट्रांजेक्शन एंड कमिट द ट्रांजेक्शन इज एक्टिव स्टेट ओनली, कंप्लीटली एरिया आपका एक्टिव का रहेगा। एक्टिव स्टेट में ए का वैल्यू 1000 एंड बी का वैल्यू भी 1000 है। नाउ स्टूडेंट, द सेकेंड स्टेज वाज पार्शियली कमिटेड। इफ T1 रीचेज द इंस्ट्रक्शन कमिट, वो कंप्लीट रूप में लास्ट में पहुंच जाता है, तो ट्रांजैक्शन गोज इनटू पार्शियल कमिटेड स्टेट, तब आप बोल सकते हैं। एंड पार्शियल कमिटेड स्टेट में जैसे मैंने ऊपर बताया, ए का वैल्यू हो जाएगा 500 एंड बी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका स्टूडेंट, बी का वैल्यू विल बी 1500, 1500। नाउ स्टूडेंट्स, फेल्ड, इट हैपेंस इफ वन ऑफ द फॉलोइंग ओकर्स। हम ये गारंटी नहीं दे सकते ट्रांजैक्शन फेल हो, बट क्या क्या कंडीशन में ऊपर वाली क्राइटेरिया में कोई भी ट्रांजैक्शन फेल हो पाएगा। इफ एनी फेल्यूर्स हैपेंस टू द ट्रांजैक्शन इन एक्टिव स्टेट, इट रेफर दैट फेल्यूर्स देयर मींस द ट्रांजैक्शन गोज इनटू द फेल स्टेट। क्या होगा शर्ते, इफ द ट्रांजैक्शन फेल्ड बिफोर राइट ए, आपका ऊपर जो डायग्राम था, इस केस में राइट ए में आपने 1000 लिया, बी में 1000 लिया, और उसके बाद आपने ए को राइट किए थे, यानी कि 1000 ए में स्टोर हुआ है, तो ए का वैल्यू स्टोर होने से पहले रीड तो हो गया था, बट आफ्टर दैट टाइम यू कैन से दैट ट्रांजैक्शन कैन बी फेल्ड देयर। And if the transaction failed after write A, that will be also before write A. After write A, then what will be the value of A and B? After write A के मतलब A का वैल्यू, क्योंकि 500 मैंने माइनस किया था, तो 500 कम हो जाएगा। आप इसको रिपीटेशन में देखिए, इस आपका जो है डायग्राम के अंदर A का वैल्यू रीड के टाइम में 1000, B का वैल्यू भी 1000 था, बट बिफोर राइट ए में आपका A का वैल्यू जो है वो 1000 ही है, माइनस होने के बाद 500 बना, तो यहां पे भी ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है, या इसके बाद भी ट्रांजैक्शन फेल हो सकते हैं। तो मैं वही आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं स्टूडेंट्स, कि अगर आपका कंडीशन बिफोर राइट ए होता है, देन ए विल बी 1000 एंड बी विल बी 1000। आफ्टर राइट ए आफ्टर राइट ए होता है, देन ए विल बी 500 एंड बी विल बी 1000 ऑल्सो। एंड इफ द ट्रांजैक्शन फेल्ड बिफोर द कमिट, बिफोर द कमिट, इस कमिट से पहले अगर ट्रांजैक्शन आपका फेल हो जाता है, देन आफ्टर राइट बी, देन A इक्वल्स टू 500 एंड B इक्वल्स टू 1500, जो कि ओरिजिनली अगर कंप्लीटली पार्शियली कमिटेड होता तो जो वैल्यू था, ये पार्शियल कमिटेड में जो वैल्यू था यहाँ पे, दैट विल बी रिवाइज्ड वैल्यू हियर। एंड इफ एनी फेल्यूर्स हैपन टू द ट्रांजैक्शन इन द पार्शियली कमिटेड स्टेट, पार्शियली कमिटेड मतलब इसको हो जाने के बाद भी अगर फेल हो जाता है, देन द ट्रांजैक्शन गोज इनटू फेल स्टेट। इस कंडीशन में ए और बी का कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, कंप्लीटली फेल स्टेट में चला जाएगा। And if transaction goes into the fail state from partially committed state, then again A equals to 500 and B equals to 1500, क्योंकि partially committed के बाद ये केस घटित हुआ है। तो those certain conditions will be happen inside the failed stage, right students? Now
The next state is aborted state. Aborted state will be the transaction is aborted state has to undo the changes made so far. अब तक जो घटित हुआ था उनको रोल बैक करना है, undo करना है. That is the old consistent value of data item A and B are stored. In aborted state, A equals to 1000 and B equals to 1000. The main criteria is क्योंकि A में आपने वैल्यू शुरू में जो वैल्यू थी, बिगिनिंग वैल्यू जो था उसमें पहुंच जाएगा. A and B are roll back to the old consistent state. And finalized state is committed state. If the transaction executes commit successfully, that is if it is successfully writes the new value of A and B into the log file or stable storage जहां पे permanent main memory में store होने जा रहा है, then the transaction is said to be committed. And in committed state, A will be 500 and B will be again 1500. That will be the new consistent state after the complete transaction. So student, this is the complete diagram what we have discussed here according to the transaction states. तो ये states transaction में database में बड़ा important सी रखता है. And whenever this transaction state will be completed, that means you have actively done your complete transaction. Thank you students. I think you have understood the topic here. Thank you.